So I'm recording the session, so let me write again. So system dot out dot print ln, or if I don't want ln, just write print, and then I will write here enter first number. Okay, then I'm taking int num1 equal to scanner. So मैं स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट पहले बना लेता हूँ. So let me create a scanner object. So scanner sc equal to new scanner system dot in. Okay, so I just use a sc dot next int. Fine. Now next I am going for the writing another value. तो इसको मैं एक बार कॉपी करता हूँ इस लाइन को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी. लेट मी राइट दिस लाइन, यहाँ पर सेमी कॉलम लगा देता हूँ. इंटर second number, and then I am doing here int num2 equal to sc dot next int. Fine. So I taken a two value from the user. Now what I will do, I am going to do the math operation for the addition. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ system dot out dot print ln, and then I am writing addition के लिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ ऑपरेशन, that is num1 plus num2. Okay, and then in with the semicolon, then system dot out dot print ln, and then I am writing subtraction, and then plus, and then right here num1 minus num2. Okay, and then so I am missing print system dot out dot print ln, and I'm writing for the multiplication plus num1 multiply by num2. Okay, and it will give me the multiplication value. And then last is system dot out dot print and for division I am just writing divi division plus, and I actually need to here define the typecasting, because एक यहाँ पर लिखना पड़ेगा जैसे double, so double, and then I have to write here num1 divided by num2. Okay, so I have done this part. So let's execute this code and see what the output I am getting. The output, let's see this part. So I am asking for the enter the first number. I given suppose I given 30, second number I given 20, and this is the value I am getting. For addition I am getting 50, for subtraction I am getting 10, for multiplication I am getting 600, and for division I am getting 1.5. So I have done the second question of the assignment. Now let's move and write for the another part. So I am making this, मैं ये फाइल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. तो मैं इसको करता हूँ कमेंट लाइन, मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ इसको. यहाँ से यहाँ तक ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट. ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन सेइंग? द सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग राइट ए कोड ऑफ ए स्वैपिंग ऑफ ए टू नंबर. दो नंबर लेना है और उसको स्वैपिंग करना है, और विद द यूजिंग ऑफ ए थ्री वेरिएबल. सो क्वेश्चन इज हियर swapping two numbers using third variable. Fine. So let's do this. Int a equal to, I given a int a equal to
I am giving like 10, so I given 10 value, and b int b equal to I given num, that is 20, right? So these two value I given. So a equal to b int, so I am using third variable, so int temp, temp is what my third variable, int temp equal to a, so a equal to b and b equal to temp. Okay, so system dot system dot out dot print ln, before swapping the number was a equal to plus a and b equal to b. ओके, इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, पेस्ट हियर, system after swapping the number is a equal to, so this line I should write uh, before doing the operation of swapping, so control X, and I am writing here, right, control V, right, and this line will be here. Okay. So execute this code and try to understand. So before swapping the number was a and b equal to 10, and after swapping the number is a 20 and b 10, right? So like this way we are doing the swapping of a two number using the three variable. Now what is the third question? अब मैं इसको भी comment section कर देता हूँ ताकि क्या है कि पूरा कोड जो है आप लोगों को मिल जाए. सो ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा, सेकंड थर्ड क्वेश्चन था. आइए हम लोग फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि आई हैव टू डिफाइन ए वन डायमेंशनल एरे. सो वन डायमेंशनल वन डायमेंशनल वन डायमेंशनल एरे and storing the value 100 at index 3. आइए इसको कोड को लिखते हैं, कैसे लिखना है. तो एरे के अंदर डायमेंशनल एरे को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग ऑब्जेक्ट बना के इसको करेंगे. तो इंट एरे का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और यहाँ पर फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम एरे 1d, मैंने नाम दिया उसका 1d, इक्वल टू न्यू इंट 5. फाइन, and then I am going to write here, that is array 1d, array 1d, इसका जो पोजीशन 3 इंडेक्स पोजीशन है उसमें वैल्यू को असाइन कर देते हैं हम 100. यही क्वेश्चन मेरे को बोलता है. ओके, एंड देन system dot out dot print ln value at array 1d 3 position. Okay, so just give a one sign, array 1d 3. Okay, so I will get the 100 as because I have assigned the value of 100 here, right? So like this way you will assign the one dimensional array. तो one dimensional array ये क्वेश्चन देने का मतलब मेरा यही था कि कैसे एरे जैसे डेटा टाइप को हम लोग डिफाइन करते हैं. तो एरे जैसे डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए तो जो बॉक्स हम लोग यूज करते हैं ये रिप्रेजेंट करता है एरे को. तो यहाँ पर हमने लिखना है ये किस टाइप का डेटा टाइप है. तो पहले इंटीजर लिख देंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, एंड देन गिव द एरे नेम. ओके, सो आई गिवन द एरे नेम एज ए एरे 1d, वन डायमेंशनल एरे है, और न्यू इंट इसका साइज मैंने दे दिया 5. ओके, तो ये टोटल मेमोरी में कितना जगह लेगा, ये टोटल मेमोरी में जगह लेगा आपका 5 इंटू 4, बिकॉज एक इंटीजर कितना टोटल लेता है, 4 बाइट लेता है, तो ये टोटल 20 बाइट जगह मेमोरी के अंदर लेगा.
memory space. Okay, so if I am going to execute this code, let me execute. So value at array 1d3 is 100. Now what is the next question? Next question is our write a code and storing the value for the 2D array. अच्छा, आप लोग मेरा कोड दिख रहा है ना? आप लोग सभी को मैं कोडिंग कर रहा हूँ, आप लोग सभी लोग देख पा रहे हैं? वेरी गुड. So now come to the next part. I am going to define the two dimensional array. तो टू डायमेंशनल array कैसे डिफाइन करते हैं? टू डायमेंशनल array टू डायमेंशनल एरे जो डिफाइन करते हैं, एंड स्टोरिंग वैल्यू इन पोजीशन 2 इक्वल टू 200. इस पोजीशन में हमको 200 सेव करना है. तो हाउ आई विल डू दिस? वेरी सिंपल. सो इंट, जैसा मैंने सिंगल के लिए डिफाइन किया था, यहाँ पर हमको 2 ब्रैकेट देना होगा. तो इससे पता चल जाएगा कंपाइलर को कि ये टू डायमेंशनल एरे है, और इसका नाम दे देते 2D, क्योंकि 2D दिया है. और फिर इसके बाद इसका भी कुछ साइज दे देते, तो न्यू इंट, इसका साइज दे देते हैं हम 4 राइट. नाउ नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को एरे 2D जो है मेरा एरे 2D, इस पोजीशन का जो 2 है उस पे हमको क्या वैल्यू असाइन करना है? 200 करना. ठीक है, एंड देन मैं असाइन कर दिया, और फिर मेरे को लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड देन आई विल राइट वैल्यू एट एरे 2D. so just plus sign array 2D 2, right, and end with the semicolon. Set the file. So let me check everything is right. So 2D का D capital है, so that is the reason I got set the file, execute the code. So now you can see value at array 2D is 200. This was the question. So I have to define the single dimensional array, and there I have to store 100 at the index value 3, and here at the location was 2,2. इस पे हमको 200 सेव करना था. तो ये वाला क्वेश्चन मेरा हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, जिसमें हम लोगों को ये करना है कि लेंथ ऑफ द एरे हमको निकालना है. तो ये लेंथ ऑफ द एरे कैसे निकालेंगे, ये मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, ये आप लोग खुद से करिएगा. आइए एक बार हम क्या करते हैं कि अपने नेक्स्ट कोड पे जाते हैं. इसको भी मैं कमेंट सेक्शन बना देता हूँ. एंड देन दिस क्लास विल गो टिल 10:50, राइट. सो कोशिश रहेगा कि मैं उससे पहले ये सारे कोड कर दूं. So I have to write a string. So I have to write a string and it will display the message. String will display the message hello from Java, and then length of it. So let me do that. So I am just writing a string s1 equal to hello from Java, right? So this is my string, and I need to display this string. So how I will display string को कैसे डिस्प्ले करते हैं वो देख लीजिए. system dot out dot print ln, and then string is plus s1. okay, so this is my string variable name I given here s1. और इसका मेरे को जो लेंथ निकालना है वो कैसे निकालेंगे? तो system dot out dot print ln, और इसमें लेंथ निकालने के लिए हम लिखेंगे का एक कोड मैसेज लिख देते हैं length लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एंड देन प्लस s1 डॉट स्ट्रिंग के अंदर पे हम लोगों का एक बिल्ट इन जो हम लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसका यूज करेंगे हम लोग लेंथ फंक्शन का. और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे.
तो आइए इसको एक बार हम लोग सेव करते हैं फाइल को एंड रन दिस फाइल। सो नाउ यू कैन सी हियर आई एम गेटिंग द आउटपुट। एक बार फिर से रन करते हैं। स्ट्रिंग इज हेलो फ्रॉम जावा एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 15। तो इस तरह किस तरह हम लोग एक स्ट्रिंग का लेंथ निकाल सकते हैं उसका भी मैंने आप लोगों को कोड दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था सर हम लोगों को एक दो स्ट्रिंग लेना है यूजर से और उस पे हम लोगों को करना है। सो इट वाज द कॉन्केटिनेशन ऑफ द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सो concatenating first name and last name. So let's do that. So I am just taking मैं एक स्कैनर बना लेता हूँ यहाँ पर। तो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, राइट। सो ये मैंने एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बना लिया। इसका यूज करता हूँ मैं, यहाँ दे देता हूँ एक मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट enter the first name। okay, enter the first name। fine। so system dot out dot first name। so यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा। स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब आप स्ट्रिंग लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्ट्रिंग आर्गुमेंट आप मेथड में ले रहे हैं तो यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है नेक्स्ट स्ट्रिंग ऐसा करके नहीं लिखना पड़ता है। लेकिन यू नो व्हाट, लेकिन जब आप इंटीजर ले रहे हैं और फ्लोट ले रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ता है sc डॉट नेक्स्ट इंट नेक्स्ट फ्लोट नेक्स्ट डबल, इस तरह का आपको लिखना पड़ेगा, राइट। लेकिन स्ट्रिंग में नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि जावा जो है वो बाय डिफॉल्ट कुछ भी वैल्यू जो है वो एज ए फॉर्म स्ट्रिंग में ही लेता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग का मैंने पहले ले लिया स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। नाउ आई एम गोइंग टू राइट फॉर द सेकंड नेम। इसको मैं कॉपी करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसको मैंने पेस्ट किया सिस्टम डॉट आउट। यहाँ पे इंटर दी लास्ट नेम कर देता हूँ, लास्ट नेम एंड देन स्ट्रिंग डॉट लास्ट नेम इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, राइट, सेमीकोलन। सो ओके फाइन फाइन। सो लास्ट नेम मैंने डॉट डाल दिया था इसलिए वहां पे एरर दिखा रहा था। नो इश्यू, ये मैंने दे दिया। अब नाउ व्हाट नेक्स्ट ऑपरेशन आई एम गोइंग टू डू। अब मुझे इसको डिस्प्ले करना है तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग फुल नेम TRING string full underscore name equal to I am just giving first name वेरिएबल जो है हमारा first underscore name plus then plus and then last name and then give the semicolon and then system dot out dot print ln and then print here the full name is plus full underscore name, right. So I done my code. Let me save this file and execute this code. So enter the first name is asking, so I'm giving Anurag Singh. So the full name is Anurag Singh, string is hello. Okay, so I didn't make this part as a comment line, so that's why I'm getting this output also. So no issue, let me make as a multi-line comment. Okay, fine. So save the file, execute it again, no problem. Anurag Singh. So the full name is Anurag Singh, right? So like this way you have to do this code. तो ये वाला हो गया। अब मेरे पास क्या है, एक जो सबसे लास्ट क्वेश्चन जो था वो वाला मैं कर लेता हूँ एंड वी हैव 10 मिनट्स मोर इन हैंड। सो आइए एक बार उसको भी कर लेते हैं। सो इसको मैं कमेंट सेक्शन बनाता हूँ और इसको भी मैं कमेंट सेक्शन बना देता हूँ। ये हो गया। अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपको लोअर केस और अपर केस में चेंज करना है। तो यू कैन डू दैट। सपोज मैंने यहाँ पर लोअर केस और अपर केस चेंजिंग केस में आप कर सकते हैं, तो यू कैन डू दैट। दैट इज
मैं कुछ एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग इक्वल टू फ्रॉम जावा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे, और एक स्ट्रिंग ले लेता है स्ट्रिंग s1, और एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं स्ट्रिंग s2 इक्वल टू हेलो फ्रॉम जावा। सो अभी देखिएगा ये दोनों दोनों जो स्ट्रिंग का जो मैंने वेरिएबल लिया है, उस स्ट्रिंग में क्या है कि मेरा जो पहला वाला जो स्ट्रिंग है उसमें जितने भी मैंने लेटर्स लिखे हैं वो सब के सब स्मॉल अल्फाबेट है, और स्ट्रिंग टू जो है वो जिसमें सारे के सारे जो लेटर्स मैंने लिए वो एक कैपिटल अल्फाबेट्स में। अब मेरे को करना क्या है, हमको एक ऐसा केस वाला कोड बनाना है, बड़ा सिंपल है। इसके अंदर पे हम लोग इनबिल्ट जो फंक्शन है जावा के अंदर पे स्ट्रिंग का, उसको यूज करेंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंड आई एम जस्ट राइटिंग फॉर द लोअर केस के लिए हम क्या करते हैं, लोअर केस प्लस s1 डॉट टू, सॉरी ये तो लोअर केस नहीं है, ये s2 कर देता हूं मैं, क्योंकि s2 में अपर केस है। तो s2 डॉट टू लोअर केस, राइट। जस्ट सिंपली आपको ये लिखना है एंड देन इट विल डू इट। एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, अपर केस के लिए जो है s1 डॉट टू अपर केस एंड देन फिनिश। ओके, तो ये दो लाइन लिखना है आपको एंड देन इट विल डू फॉर यू। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। सो लोअर केस में देखिए ये वाला जो है ये पूरा चेंज हो गया। तो एक बात थोड़ा सा क्या है कि समझ में नहीं आ रहा है कि चेंज हुआ भी है कि नहीं। तो एक काम करता हूँ, कुछ मैसेज चेंज करता हूँ। तो जो मेरा लोअर केस जिसको बनाना है, हेलो फ्रॉम जावा फ्रॉम अपर केस। ओके, सो ये ऑटोमेटिकली क्या है, चेंज हो जाएगा। एंड हेलो फ्रॉम जावा फ्रॉम लोअर केस, राइट। सो ये जो है ये चेंज होना चाहिए। तो आउटपुट कैसा आएगा एक बार देख लीजिए। तो नाउ यू कैन सी जो अपर केस वाला था वो लोअर केस में हो गया। सो हेलो फ्रॉम जावा फ्रॉम अपर केस एंड हेलो फ्रॉम जावा फ्रॉम लोअर केस। सो लोअर केस वाला जो था वो पूरा का पूरा कैपिटल में हो गया, और जो कैपिटल वाला था वो लोअर केस में हो गया, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट असाइनमेंट था मैंने उसका पूरा वीडियो यहाँ बना दिया। ये वीडियो मैं रिकॉर्डिंग भी किया हूँ, मैं इसको आज यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और जो लोग अगर किसी को अगर कोई क्वेश्चन, इफ एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस कैन आस्क टू मी, आई विल सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम। और असाइनमेंट जो है ये पूरा का पूरा कोडिंग जो है आप लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन इन योर नोटबुक्स, एंड आफ्टर दैट मेंटेन द कॉपी, राइट। आप लोग उस कॉपी को मेंटेन करोगे ताकि क्या है कि ड्यूरिंग योर लाइक कैंपसिंग टाइम और इंटरव्यू के टाइम में आपके पास एक जावा का कॉपी बना हुआ रहे, ताकि क्या है कि आप फटाफट कोड देख लो और समझ जाओ कि कैसे कोडिंग करना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉपी को भी मेंटेन करेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।